لال ٹوپی اگر ولگر ہے تو پھر نہ پہنے. لال ٹوپی ولگر نہیں ہے، بلونگڑا اور مسخرہ ولگر ہے. نہیں بلونگڑا مسخرہ کیا ایکسپریشن ہے ہمارے یہاں کے ایکسپریشن ہیں. اس میں کیا وہ بات ہے؟ چلیں آپ عدالت میں چلے جائیں. یعنی 4 سال سے یہ میرے خلاف اپنے ٹیلی ویژن کے پروگرام میں لال ٹوپی والا مسخرہ، لال ٹوپی والا بلونگڑا، ایسے الفاظ انہوں نے، فوش الفاظ انہوں نے میرے بارے میں استعمال کیا. میں آپ کو بتا رہا ہوں اسی کے بارے. تو وہ تو مفروضے پہ چل رہے ہیں. جنگ اس بات کی ہے کہ یہ مجھے ISI کا کہہ رہے ہیں اور میں کہہ رہا ہوں کہ جی آپ لوگوں کا جو اسٹیبلشمنٹ ہے، آپ کا جو ایجنڈا ہے، جس آپ پاکستان کی قومی نظریاتی روحانی اساس کے خلاف کام کر رہے ہیں، آپ پاکستان ISI کے خلاف کام کر رہے ہیں، آرمی کے خلاف کام کر رہے ہیں، کشمیر کے خلاف بات نہیں کرتے، لائن آف کنٹرول کو پرماننٹ لائن آف کامرس بناتے ہیں، آپ پاکستان اور انڈیا کے درمیان بارڈر ختم کر کے ایک کامن کلچر بنانا چاہتے ہیں، اور یہ سارا ایجنڈا وہ ہے جو انڈین فارن پالیسی کا ہے. اور اس کے آرٹیکل 62 63 کیا بالکل خرافات ہے. ایک جاہل غلیظ انسان جو اس ملک کے اوپر قابض ہو گیا اور اس کی وجہ سے آج سارا آپ کو یہ سب انہی کی پیداوار ہے. یہ سب ضیاء الحق کے، یہ سب جو آپ کو نظر آ رہے ہیں ضیاء الحق. اب یہ زبان دیکھ لیں ان کی کون سی ہے. از دس پارلیمنٹری، از ڈیسنٹ، از اٹ شوڈ بی گوئنگ آن ایئر. اب یہ خود آپ سے پروگرام کی بات کہیں گے، اب یہ خود کہیں گے آپ سے کہ اس پروگرام کو آن ایئر نہ کریں کیونکہ انہوں نے اس کی بات کہی ہے. ارے میں کیوں کہوں گی بھائی؟ یہ آپ جیسے لوگوں کا کام ہے. ہم نہیں کہتے، ہم تو جو کہتے ہیں بوانگے دوہلی کہتے ہیں. لیکن دیکھیے یہ اس شخص سے دیے ہوئے یہ دو. نمستے دوستو، جے ہند. نک نیوز برنر کی ریئیکشن ویڈیو میں آپ سبھی کا سواگت ہے. دوستو لال ٹوپی وہ گندی نالی کا کیڑا ہے، اسے جتنا بھی بستر پر بٹھاؤ یہ گھوم پھر کے نالی میں ہی جائے گا. یہ وہ گندا آدمی ہے جسے بھارت کے خلاف زہر اگلنا ہی اگلنا ہے. دوستو لال ٹوپی ہمیشہ غزوائے ہند کی بات کرتا ہے. اسے غزوائے ہند کرنا ہے، وہ یہاں کے کافروں کو مارنا ہے، بس اس کا یہی پلان ہے اور کچھ نہیں. ہمیشہ زہر اگلتا ہے بھارت کے خلاف. یہ اپنے پاکستان کے سندھ میں نہیں دیکھتا جہاں ہندوؤں پر اتیاچار ہو رہا ہے. بھارت کے مسلمانوں نے کئی بار کہہ دیا ہے اس لال ٹوپی کو اور پاکستان کو کہ ان کے بیچ میں بڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان کا جو مسائل ہیں بھارت کے اندر بہت ہی اچھی طریقے سے چل رہے ہیں، بہت ہی بھائی چارے سے رہ رہے ہیں اور ان پر کوئی اتیاچار نہیں ہو رہا. لیکن پھر بھی ان کو زہر تو اگلنا ہی ہے پاکستان والوں کو. اور بھارت کے مسلمانوں نے پاکستان والوں کو کہہ رکھا ہے کہ ہمارے جو مسئلے ہیں ہم خود ہی سولو کر لیں گے، ان کو بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پھر بھی یہ اپنا گٹر جیسا منہ کھولتے ہیں پاکستان والے. اور دوستو اس ویڈیو میں لیڈی اینکر صاف صاف بول رہی ہے لال ٹوپی سے کہ ہم پاکستان کے باہر دیکھنے کی بجائے پاکستان کے اندر جو سندھ ہے اس میں دیکھ لیتے ہیں جہاں مائنورٹیز پر اتیاچار ہو رہے ہیں اور ان کے ساتھ بہت ہی زیادہ غلط ہو رہا ہے. اور وہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان کے باہر تو ہم بعد میں دیکھیں گے، پہلے اندر ہی دیکھ لیتے ہیں جہاں ہندوؤں پر بہت ہی زیادہ اتیاچار ہو رہا ہے. لیکن کوئی بھی اپنے گریبان میں جھانک کر نہیں دیکھتا ہے کہ ہم کیا غلط کر رہے ہیں، یہاں کیا غلط ہو رہا ہے. بس دوسروں کی غلطی نکالنی ہے اور لال ٹوپی وہی کر رہا ہے. اپنے گریبان میں نہیں جھانک رہا، اپنے پاکستان میں نہیں دیکھ رہا جہاں غلط کام ہو رہے ہیں، بس انہیں دوسروں کی غلطی نکالنی ہے. ایسے جاہلوں کو کون سمجھا ہے کہ پہلے اپنے گھر کو دیکھو، باہر کے بعد میں دیکھنا. باہر سب کچھ اچھا چل رہا ہے، بھارت میں کوئی دقت نہیں ہے. دقت ان کے دماغ میں ہے جو یہ پاکستانی اسلامک دھرم کا ٹھیکیدار بننے کی کوشش کرتا رہتا ہے، لیکن ہے یہ کچھ بھی نہیں. اور یہ لال ٹوپی تو ہاتھ دھو کے پیچھے پڑا ہے، گجوائے ہند گجوائے ہند. پاگل ہو رکھا ہے یہ گندی نالی کا کیڑا. تو دوستو دیر نہ کرتے ہوئے چلتے ہیں آگے کی ویڈیو کی طرف. دھنیہ واد. یہ سارے انڈین ایجنٹس ہیں. دیکھیے آج ہم کو الحمدللہ پہلی دفعہ موقع ملا ہے کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر بات کریں. زندگی میں میری 5 سال سے میں ایمان کی حد تک یقین رکھتا تھا کہ زید حامد ISI کے ایجنٹ ہیں، ایجنسیز کے لیے کام کرتے ہیں. اور صرف 2 مہینے پہلے مجھے معلوم ہوا کہ زید حامد صاحب ایجنسیز کے لیے کام نہیں کرتے. یعنی 4 سال سے یہ میرے خلاف اپنے ٹیلی ویژن کے پروگرام میں لال ٹوپی والا مسخرہ، لال ٹوپی والا بلونگڑا، ایسے الفاظ انہوں نے، فوش الفاظ انہوں نے میرے بارے میں استعمال کیا. میں آپ کو بتا رہا ہوں اسی کے بارے. تو وہ تو مفروضے پہ چل رہے ہیں. جنگ اس بات کی ہے کہ یہ مجھے ISI کا کہہ رہے ہیں اور میں کہہ رہا ہوں کہ جی آپ لوگوں کا جو اسٹیبلشمنٹ ہے، آپ کا جو ایجنڈا ہے، جس آپ پاکستان کی قومی نظریاتی روحانی اساس کے خلاف کام کر رہے ہیں، آپ پاکستان ISI کے خلاف کام کر رہے ہیں، آرمی کے خلاف کام کر رہے ہیں، کشمیر کے خلاف بات نہیں کرتے، لائن آف کنٹرول کو پرماننٹ لائن آف کامرس بناتے ہیں، آپ پاکستان اور انڈیا کے درمیان بارڈر ختم کر کے ایک کامن کلچر بنانا چاہتے ہیں، اور یہ سارا ایجنڈا وہ ہے جو انڈین فارن پالیسی کا ہے. اور اس کے ہمارے پاس ثبوت ہیں. یہ میرا سوال اپنی جگہ رہ گیا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ یہ اتنی ایکسٹریم الزام کیسے لگ گئے ISI اور را؟ بالکل ٹھیک ہے. مطلب آپ کو نظریاتی اختلاف ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کا، قائد اعظم کے بارے میں کوئی بات کرتا ہے، کوئی علامہ اقبال کے بارے میں کوئی مختلف نظریات ہیں، مگر یہاں پر یہ یہودی ایجنٹ، CIA ایجنٹ، را ایجنٹ، ISI ایجنٹ، یہ بیچ میں باتیں کہاں سے آ جاتی ہیں یہ خواتین حضرات؟ اور یہ وہ بات ہے جو میں کہہ رہا تھا کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ دلائل سے ہٹ کے پھر یہ ٹھپے لگانے شروع کر دیتے ہیں، تو وہاں سے مسئلہ. آپ نے ان کو ایسے کہہ دیا، انہوں نے را کہہ دیا. اب یہ ایک عجیب کنفیوژن ہے. وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں.
यहां से माशरा कंफ्यूज होता है। पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी एजेंसीज, पाकिस्तान का दिफा पाकिस्तान की आर्मी करती है और आईएसआई करती है। अगर हम बिलफर्ज महाद इनकी बात मान लेते हैं कि हम आईएसआई के एजेंट है तो इसमें फख्र की बात है हमारे लिए, कोई तकब्बुर और शर्म की बात नहीं है, वी ऑनर इट। लेकिन रॉ के लिए काम करना बेगैरती और बेशर्मी है। आप साबित करें ना जी, रॉ के लिए काम किया। द पॉइंट इज, अब एग्जैक्टली देखिए, अब दोनों बातें साबित हो जाएंगी। इन्होंने मुझे लिखा आईएसआई का और लिखा कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस प्रूव दैट आई वर्क फॉर आईएसआई, लिहाजा ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को मानती हैं। और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस तो हम सैकड़ों पेजेस निकाल के ले आएंगे कि जिसके अंदर खुद इनके अपने आर्टिकल में ये लिखती हैं कि पाकिस्तान का दो कौमी नजरिया आप इररिलेवेंट है, खत्म हो चुका है। अब किए तो जवाब में हमने काउंटर अटैक भी किया। पहला हमला इनकी तरफ से था कि जब इन्होंने हमें एजेंसीज का और आईएसआई का लाल टोपी वाला मसखरा जो बातें हमने कही, फोर्स जबान हमारे खिलाफ सब इस्तेमाल करते थे अपने टेलीविजन प्रोग्राम में। इनसे पूछें ये कौन सी डिसेंसी और मीडिया एथिक्स है? अगर हमें इख्तिलाफ है तो इख्तिलाफ करें ना। द पॉइंट इज वो कह रहे हैं कि लाल टोपी वाला मसखरा तो है बैठे हुए नहीं, लाल टोपी वाला मसखरा इज तो भाई वो उनका अपना जाती ख्याल है। अगर ये ऐसी हरकतें करेंगे जिससे लोगों को हंसी आएगी तो मसखरा कहा जाए। इफ आई यूज वल्गर वर्ड्स फॉर देम दैट शुड बी ओके। मसखरा इज नॉट अ वल्गर। इनको मैं बिंदी वाली हिंदू कहूं तो कह दें। और हिंदू होने में क्या खराबी है? हमारे मुल्क में हजारों लोग, यानी इसको भी ताना बनाए। और द पॉइंट इज ये कोई गाली है? ये कोई गाली है? लाल टोपी वाला भी कोई गाली नहीं। हाँ तो फिर गाली नहीं तो फिर क्यों कह रहे हैं? आपने मसखरा क्यों बना दिया उसको, बुलुंगड़ा क्यों बना दिया? क्योंकि आप ऐसी हरकतें और नफरत का प्रचार करना बंद कर दें। आपकी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या है? बाद में आपको रॉ आपको बताती है बाकायदा आके कि हमारे एजेंट्स हैं। आपके सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या है? आपको किसने कहा कि हम ऐसा? हमारा सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन तो आप खुद है। आप जो प्रोपेगेंडा करते हैं, जो आप प्रोपेगेंडा करते हैं। और हमने तो नहीं कहा कि आप कितने पैसे लेते हैं, हमने तो नहीं कहा कि आप फंडेड हैं आईएसआई। देखिए एक सेकंड, हमने बात की है सफमा के बारे में कि रॉ फंडेड है, फिगर नहीं दिया कि इनको कितने मिलते हैं। बाकी वो $400 मिलियन वाज अ जेनरिक स्टेटमेंट। दिस इज फॉरेन फंडिंग इनटू द पाकिस्तान। मैं आपको सिर्फ एक बात आपसे पूछना चाहूंगा मारूफ साहब ब्रेक के बाद, कि आपने कहा कि ये जो बात करते हैं उस बात से आपको लगता है कि ये आईएसआई के हैं। ये आर्गुमेंट उन पे काउंटर की जा सकती है फिर। अच्छा। इनका सारा प्लान और एजेंडा जो है वो सारा का सारा इंडियन फॉरेन पॉलिसी को बढ़ा रहा है, पाकिस्तान को नुकसान देता है। कश्मीरी मुजाहिदीन से पूछिए, कभी इन्होंने बात नहीं की कि पाकिस्तानी मीडिया को कश्मीर में भेजना चाहिए। उस पर भेजना चाहिए कश्मीर में, आप बलोचिस्तान में भेजिए ना। पाराचनार तक तो आप जा नहीं सकते। दिस इज वेयर दे पाराचनार तक तो आप जा नहीं सकते, आपके लोग मर रहे हैं वहां। सबसे बड़ी एट्रोसिटी कश्मीर में हो रहा है, वहां नहीं जाना चाहिए। बलोचिस्तान में हर रोज आपको सरबरीदा लाशें मिल रही है, वहां पे कोई जुल्म नहीं हो रहा। आप जरूर जाएं। बलोचिस्तान में किसने रोका मीडिया को जाने से? तो आपने तो कभी बात नहीं की। हमने हमेशा बात की, आपने हमारे प्रोग्राम जिहाद उसको बना दिया आप लोग। दिस इज वेयर इट कम्स। एवरीवेयर जहां इंडियन फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन एजेंडा को सपोर्ट मिलता है, सफमा वहां खड़ी होती है इंडिया का दिफा करने के लिए। कोई पाकिस्तान से प्यार करने वाला जर्नलिस्ट ये कहेगा कि कश्मीर में पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ना भेजिए सिवाय इनके। आप कैसे फैसला करेंगे पाकिस्तान से प्यार का भैया? आप कैसे मेरे पाकिस्तान से प्यार का फैसला करेंगे? मुझे कोई सर्टिफिकेट चाहिए आपसे? आप काइंडली ये सर्टिफिकेट देना बंद करें। आप हैं कौन सर्टिफिकेट देने वाले? आपके क्रेडेंशियल्स क्या हैं भाई? व्हाट आर योर क्रेडेंशियल्स ज़ैद ज़मान साहब? My credentials are that I love Pakistan. I stand for two-nation theory. I stand for Iqbal. I stand for Islamic Republic of Pakistan. I love Pakistan. I do not stand for two-nation theory because it is irrelevant. ये है फर्क सारा झगड़ा इस बात का है। Irrelevant today. यहाँ पे हिंदूज रहते हैं, वो हमारे भाई हैं। यहाँ पे क्रिश्चियंस रहते हैं, वो हमारे भाई हैं, हमारे बराबर के शहरी हैं। और वहाँ पे टू-नेशन थ्योरी कहाँ पे आपकी लागू होती है? ये टू-नेशन थ्योरी खत्म कर दें, पाकिस्तान खत्म हो जाता है। आप अपने मुल्क के हिंदुओं को ही डिवोर्स कर रहे हैं। आप अपने हिंदू उस वक्त भी थे जब टू-नेशन थ्योरी थी, जब पाकिस्तान बना था और कायदा में हिंदुओं के राइट्स की बात की। कि मेरे मुल्क के जो हिंदू हैं, मेरे मुल्क के जो क्रिश्चियंस हैं, वो उतने ही शहरी हैं जितने ये। उसको भी हम ऑन करते हैं। क्रिश्चियन और हिंदू को डिसऑन नहीं किया। फिर आप टू-नेशन थ्योरी की क्या बात कर रहे हैं? एक बात सिर्फ इतनी है कि पाकिस्तान की एक रूहानी और नजरियाती असास है जिसपे 50 लाख मुसलमान शहीद हुए थे। अगर आप उस रूहानी और नजरियाती असास को काट दें फिर कोई पाकिस्तान नहीं है। फिर वो सारा जवाज हमारा पाकिस्तान बनाने का खत्म हो जाता है। जो आज की 4th जनरेशन वॉर है, जो आजकल पूरे मिडिल ईस्ट में मुसलमान दुनिया पे जो हमले किए जा रहे हैं, मुसलमान मुल्कों को तकसीम किया जा रहा है, ये एक 4th जनरेशन वॉर पाकिस्तान पर भी है। हम पर तहरीक तालिबान के दहशतगर्द भी हैं, BLA के दहशतगर्द भी हैं, पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस और कियोस भी है, और मीडिया और इंफॉर्मेशन वॉर भी है। मीडिया इंफॉर्मेशन वॉर, जिसको सायोप्स कहते हैं, सबसे इंटीग्रल पार्ट होता है किसी भी कौम को डिमोरलाइज करने का, कंफ्यूज करने का। आप कंफ्यूजन की बात कर रहे हैं ना। कंफ्यूजन ये है कि इस कौम को कंफ्यूज कर दो कि पाकिस्तान तुमने क्यों बनाया था। कंफ्यूज कर दो कि हिंदू और पाकिस्तान तो एक जैसे लोग हैं, आलू गोश्त वो भी खाते हैं, हम भी खाते हैं। वजह आपके पास है तो बता देना। और कंफ्यूज कर दो कि अल्लामा इकबाल का कोई रोल नहीं था। कंफ्यूज कर दो कि कायदे आज़म सेकुलर थे। जब तुम इन बातों बात करें ना, फैक्ट्स पे बात करें भाई, आप क्या, जब तुम इन बातों को फैला दोगे फिर पाकिस्तान का जवाब खत्म हो जाएगा। नहीं, फोकस करके आप बताइए कहां पे ये इशू है। और इस बात को स्पेंड करने के, और फिर कश्मीर की बात ना करो। कश्मीर के उनकी परवाह नहीं है, इनको परवाह बलूचिस्तान की है। बीच हमारा और पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई को डिमोलिश करो। की परवाह ही ना। पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई के खिलाफ काम करो। एक बात याद रखिएगा, नो मैटर व्हाट,
जो मर्जी कोई कहे, पाकिस्तान आर्मी इस वक्त पाकिस्तान का दिफा भी कर रही है और आईएसआई पाकिस्तान आर्मी क्या इज द फेदर इन देयर कैप। देख लिया जी हमने ओसामा बिन लादेन के घर से उठा के और इस वक्त मेहरान पाकिस्तान इनके अपने अल्फाज के मुताबिक, माफी दे दीजिए, ऐसे भी आ जाए, दो हाथ की मार है, फिजिकली मेरे से ज्यादा तगड़े तो नहीं है, लेकिन आप ऐसा मत कीजिएगा। लेकिन बात यह है आइडियोलॉजिकल बात, हमने आज तक कोई वायलेंस नहीं किया, कोई गोली नहीं चलाई, मेरे सारे प्रोग्राम आप देख लीजिए, उसके अंदर यही बात, बच्चों को भी हमने सख्ती से मना किया, सड़क पे कोई ना निकले, पथराव कोई ना करे, आइडियोलॉजिकल प्लेन पे बात करें। फुहाशी और गालियां देने तो ये लोग उतरे हैं पहले, लाल टोपी वाला मस्खरा, बलूंगड़ा, ये कोई अल्फाज इस्तेमाल करने वाले साहब के, यानी इस फुहाशी के लेवल तक ही उतर आए, बेकम वल्गर एक्चुअली। लेकिन हमने लाल टोपी अगर वल्गर है तो फिर ना पहने। लाल टोपी वल्गर नहीं है, बलूंगड़ा और मस्खरा वल्गर है। नहीं, बलूंगड़ा मस्खरा क्या एक्सप्रेशन है, हमारे यहाँ के एक्सप्रेशन है, इसमें क्या वो बात है। यहाँ पर तो फिर नहीं, तो फिर अब तय क्या हुआ है, तय क्या हुआ है, मतलब है कि ये इंटेलिजेंस एजेंसीज लड़ रही है या नजरियाती कोई इख्तलाफ है या क्या है इनका फंडिंग आपने ऐसे घुस रही बीच में। साहब ये ब्लैटेंट लाइज खुद बोल रहे हैं, फंडिंग का कोई सबूत है तो मुझे ये कह रही है कि जी एक वो लाइन करके आईएसआई जो, अगर ये आईएसआई की फंडिंग है तो मुझे उसका प्रूफ दे, रॉ की फंडिंग है, देखिए मुझे आप सीधी बात, अगर रॉ की फंडिंग इनके पास है तो मुझे प्रूफ दे दें, नहीं उसमें मतलब वो नजरियाती बहस है। अगर रॉ की फंडिंग है तो उसके आ जानी चाहिए प्रूफ, अगर आईएसआई की फंडिंग है तो उसके प्रूफ आ जाए, ऐसा होना तो फिर हमें भी जरा मजा है ना कि शायद साहब मेरी बात सुने आप। देखिए इन्होंने वो लाइन पढ़ के बताई जिसके अंदर हमें जो कन्वे हुआ था आईएसआई की तरफ से या जो भी एजेंसी है उसकी तरफ से, उन्होंने कन्वे किया था फोन के जरिए कि आप जो है पाकिस्तानी बन कर रहे हैं। अब हमें बताएं पाकिस्तानी बनकर रहने से अगला जुमला भी पढ़े ना, अगला जुमला बोले ना, आपने खुद ही लिखा हुआ है, बोले। आपने कहा पाकिस्तानी बन के रहे एंड स्टॉप लुकिंग एंड साउंडिंग लाइक दुश्मन। लुकिंग यानी आपने दुश्मन का हुलिया भी खुद ही तय कर लिया। ये कैसे, इनका लुकिंग से क्या मुराद है, इनकी होलिया में आई लुक लाइक आई वांट तो ये एक्सप्लेन करेंगे, इनको फोन आया था, मुझे तो नहीं आया, इन्होंने खुद लिखा। क्या मतलब, तो हम क्या मेरा ख्याल है आपकी बिंदिया में इतराज होगा। एंड साउंडिंग लाइक अ दुश्मन, नहीं बिंदिया साउंडिंग लाइक, जैसे ये मैं तो अब बात करूंगी, खुदा लगती बात करूंगी जो इस वक्त की रियलिटी है और जो उस वक्त की भी शायद रियलिटी हो, क्योंकि जिन्ना साहब ने अगर 11 अगस्त को कोई तकरीर की थी तो कुछ सोच समझ कर ही की होगी। उस तकरीर का तो हवाला देते ही नहीं है ये, जिसमें उन्होंने कहा जी यू सीज टू बी हिंदूज और मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस नॉट इन रिलीजियस सेंस बट इन सोशल सेंस, पॉलिटिकल सेंस। सैकड़ों कायद-ए-आज़म ने तकरीरें उससे पहले और बाद की हैं और डेथ बेड पे तकरीर की है, जिसको डॉक्टर इशार ने भी कोट किया है कि कायद-ए-आज़म ने कहा है कि पाकिस्तान में खिलाफत राष्ट्र का निजाम होना चाहिए। डॉक्टर इशार ने कोट किया है इसको अपने डेथ बेड के ऊपर और कई किताबों में लिखी गई है। वहां पे मौजूद थे जब वो डेथ बेड पे थे, वो तो रास्ते में उनकी डेथ हुई है जिस वक्त उनको एम्बुलेंस में लेके जा रहे थे, उनकी बहन ज़ियारत की बात है जी, डेथ बेड के ऊपर कहाँ चले गए वहां। इतने ये राइटिस्ट इतना झूठ बोलते हैं और इतना ब्लैटेंटली बेशर्मी के साथ झूठ बोलते हैं और इस पूरी तहरीक को उन्होंने जिस तरह से हाईजैक किया है और जिस तरीके से मदूदी साहब और उनकी जमात ने हाईजैक किया है, ये बात से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है ना, उनकी जमात से वो मुझे पता है आपका कोई ताल्लुक स्कॉलर्स के साथ कैसे हो सकता है, लेकिन जिस लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट पे ये बात कर रहे हैं कि जी ये दो कौमी नजरिए के भी खिलाफ है, ये आपके डॉक्यूमेंट्स रूहानी एहसास, एक लफ्ज इन्होंने रूहानी एहसास, वो क्या है रूहानी एहसास? इनका अपना स्टेटमेंट है कि दो कौमी नजरिया इरेलेवेंट हो चुका है, अभी आपके सामने बात इरेलेवेंट है। अच्छा मुझे आप ये बताएं, मुझे आखिर में जो यहाँ पर एक पंजाबी है उसकी जो उस तरफ के पंजाब के साथ उसकी जो कल्चरल मैच मेकिंग है वो उस तरफ के किसी और के साथ कैसे बन सकती, किसी अरबी के साथ कैसे बन सकती है? ज़ैद हमीद साहब, आप खिलाफत की बात करते हैं पाकिस्तान में? जी, खिलाफत राष्ट्र के मॉडल की बात करते हैं। विच मॉडल इज दैट? कौन सा मॉडल? और आप अंडरस्टैंड अच्छा। नहीं तो आप बताएं ना, अब हम तो नहीं अंडरस्टैंड, आप बताएं अगर आप में कैपेबिलिटी है बताने की तो बताइए। आप जब चाहें हमारे साथ डिस्कशन कर लीजिए, हम बात कर लेंगे, इस वक्त 2 मिनट में प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, व्हेनेवर यू वांट। ठीक है, लेकिन आप मॉडल की बात कर रहे हैं। मॉडल की बात, खिलाफत राजदा तो हो नहीं सकती ना, लेकिन आप खिलाफत के मॉडल की बात करते हैं जिसमें जमहूरियत भी है। देखिए अल्लामा इकबाल ने उसके लिए स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी इस्तेमाल किया, विच इज नॉट दिस वेस्टर्न डेमोक्रेसी। अच्छा, ये अलग चीजें हैं, ये लंबी बहस है। अच्छा, लेकिन आप किसी मुल्क का मॉडल है आप किसी? जी जाहिर है, देखिए इस वक्त भी फॉर एग्जांपल ईरान का जो पॉलिटिकल मॉडल है, ईरान के इकोनॉमिक मॉडल की बात नहीं कर रहे, पॉलिटिकल मॉडल की बात कर रहे हैं। ईरान में डेमोक्रेसी, लेकिन खलीफा नहीं है वहां। नहीं, खलीफा नहीं है, प्रेसिडेंट है, लेकिन मॉडल उनका खिलाफत राष्ट्र वाला इस तरह से बनता है कि वहां पर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है, पूरी कौम इलेक्शन अपने अमीर को सरबराह मुंतखब करती है और जो सिस्टम्स और चेक्स और बैलेंसेज हैं, अपने मुल्क का बेहतरीन आदमी सदर बनता है।
करप्ट और चोर आदमी जो सिस्टम इस वक्त बना हुआ है करप्ट जो पाकिस्तान में उस तरह का नहीं और है। आप पार्लियामेंट्री जमहूरियत के मैं तो हामी। पार्लियामेंट्री देखिए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी भी आप ला सकते हैं, लेकिन आइन में आर्टिकल 62 और 63 दिया हुआ है। वो खुराफात है बिल्कुल। आर्टिकल 62, 63 क्या है, बिल्कुल खुराफात है। एक जाहिल गलीज इंसान जो इस मुल्क के ऊपर काबिज हो गया और उसकी वजह से आज सारा आपको ये सब उन्हीं की पैदावार है। ये सब ज़ियाउल हक के, ये सब जो आपको नजर आ रहे हैं ज़ियाउल हक अब ये जबान देख लें इनकी कौन सी है। इज दिस पार्लियामेंट्री, इज डिसेंट, इज इट शुड बी गोइंग ऑन एयर। अब ये खुद आपसे प्रोग्राम की बात कहेंगे, अब ये खुद कहेंगे आपसे कि इस प्रोग्राम को ऑन एयर ना करें क्योंकि इन्होंने इस की बात कही है। नहीं अरे मैं क्यों कहूंगी भाई, ये आप जैसे लोगों का काम है, हम नहीं कहते। हम तो जो कहते हैं बवांगे दोहली कहते हैं। नहीं, लेकिन देखिए ये उस शख्स के दिए हुए ये दो वो थे। आप प्लीज ये बंद करेंगे, क्या खुराफात है ये। आर्टिकल 62, 63 जो है ये क्या है? 62, 63 क्या है? कौन फैसला करेगा? आर्टिकल 62-63 में 3 बातें लिखी हुई हैं कि पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियंस और मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली और हुक्मरान बनने के लिए आपको पाकिस्तान की आइडियोलॉजी टू नेशन थ्योरी पे कामिल यकीन होना चाहिए, आपको प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना चाहिए और आपको खयानत करप्ट नहीं होना चाहिए। ये 3 शराइत हैं और इन 3 शराइत को आप निकाल दें अगर, तो फिर वो फ्री फॉर ऑल है जो आज हो रहा है। इंतहाई सब्जेक्टिव है, ये सब बिल्कुल खुराफात है, सब्जेक्टिव है। इसका फैसला कौन करेगा कि खाइन नहीं है और वो नहीं है? मतलब ये कि या तो आप ये सबसे सुप्रा मोरल और बनकर आ जाए ना, वो तो ये नहीं है। ये तो खुद झूठ बोलते हैं, इन्होंने लोगों के बच्चे मरवाए हुए हैं, तो ये कैसे बात कर सकते हैं? दूसरी बात ये है कि दो कौमी नजरे की आप बात कर रहे हैं भाई। ये तो कायदे आज़म के बनने के भी बहुत बाद इन्होंने बोलना शुरू किए ये सब चीजें। नजरिया पाकिस्तान का तो आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान का वर्ड ही नहीं था। ये तो बाद में 60s में जाके इन लोगों ने निकाल लें किताबें। के अजीज साहब की किताब को निकाल लें, हिस्ट्री ऑफ द आइडिया ऑफ पाकिस्तान कहां पर है, और ये आयशा जलाल की किताब को निकाल लें। आप किसी भी आप आयन टालपोर्ट जो कि बहुत ज्यादा प्रो जना आदमी थे, उनकी किताबों को आप निकाल लें। कहां पर है नजरिया पाकिस्तान का? अब सैकड़ों जगह मौजूद है। अगर ये ना देखना चाहें तो और बात है, अगर ये ना देखना बात करें मेरे साथ रेटोरिक मत बोलिए। आप ये रेटोरिक पे चल रहे हैं। आप हमारे साथ जिस फोरम पे चाहे डिबेट कर लें। ये फोरम है ना, आप करें, आप बात करें। 1 मिनट के बाद प्रोग्राम खत्म हो रहा है, लेकिन व्हाट यू आर सेइंग, आई एम सॉरी, इज एब्सोल्यूट नॉनसेंस। व्हाट यू आर सेइंग इज एब्सोल्यूट नॉनसेंस, बिलो नॉनसेंस। अच्छा रियाज साहब, और ये जंग है हमारी, इसी वजह से सैफमा भड़की यही है जंग है हमारी, और हम इंशाल्लाह ये जंग जीत कर दिखाएंगे। पाकिस्तान एक सेकुलर मुल्क बन के रहेगा जहां पर किसी के साथ कोई नाइंसाफी रवा नहीं रखी जाएगी, सिर्फ मजहब की बुनियाद पर। आसिया बीबी आज तक जेल में है और इनके जैसे लोगों की वजह से हमारा सारा केस इन्होंने खुद प्लीड कर दिया। आई डोंट हैव टू से एनीथिंग नाउ। लेकिन आप लोग मतलब एक साथ रहना तो है ना, पाकिस्तानी है रियाज साहब। जब इनको इख्तियार मिला, इतना ज्यादा इन जैसे लोगों की वजह से मेरे मुल्क का यह हाल हो गया है, मैं इनको कैसे माफ कर सकती हूं? रेडिकलाइजेशन की इंतहा हो गई है मेरे मुल्क में, जहां पे हर दूसरा बंदा एक दूसरे का गला काटने को तैयार है, सिर्फ मजहब। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।